which is Border Tourism Webinar Series highlighting the potential of tourism in border districts of India, and we call it as aspirational districts also. And today we have the focus state is Uttar Pradesh. So next 2 hours we would be speaking on the border tourism, especially in Uttar Pradesh. And as you all are aware that UP has got 75 districts in Uttar Pradesh. But as far as the border districts are concerned, they are Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Bahraich, Shravasti, Balrampur, Siddharth Nagar, and Maharajganj. So today we are basically going to talk about Shravasti. And ladies and gentlemen, before we go, as all our distinguished panelists are going to be there, and we welcome on behalf of PhD CCI. Let me share it with you. There are 18 states and 7 union territory, seven territories, which basically are sharing the border with number of countries. It includes Pakistan, it includes China, it includes Bhutan. So the idea of this border tourism is basically of Government of India, Ministry of Tourism, and that how the infrastructure is going to take shape over there, how the tourism can be promoted in these districts apart from whatever the conventional tourist places which we have, and at the same time how new places can really be part and parcel of the tourism products of India. So keeping that thing in mind, this entire series is basically there for the last I would say more than 15 months. And today we are going to have our 16th or 17th, if I don't know specifically, but I think it is 17th of our this webinar series which we are having. And at the same time, the next is also we are going to talk on Sikkim. So this is the background as far as this border tourism webinar series is concerned. Let me just run through the program details. Our president is stuck somewhere, so he could not be able to speak today. We will be having Mr. Pawan Sagar Jain. He is the chairman of Tourism and Hospitality Committee, PhD, Chamber of Commerce and Industry. So he will be setting the theme for today's discussion. Post that, we will be showing it to you a small presentation I'm sorry, on Uttar Pradesh. And then we are very happy to have with us Mr. Mukesh Kumar Meshram from Indian Administrative Services. He is the Principal Secretary, Tourism and Culture, Government of Uttar Pradesh. We welcome him on this important webinar series. And then we will have Mr. Rama Kamaraju, Senior Consultant, Aspirational Districts Program, Niti Aayog. He would be speaking. Post that, Mr. Sunil C. Gupta, Chairman, Northern Region Indian Association of Tour Operators, which is called ITO. So he would be speaking. And Mr. Vivek Pandey, President, Travel Trade Association of Uttar Pradesh. He would be speaking. And last but not the least, Mr. Rajan Sehgal, Co-Chairman, Tourism and Hospitality Committee, PhD Chamber, and a keen golfer. So he would be speaking and giving his concluding remarks. We will also welcome Mr. Sudhir Sopti, our special invitee of our Tourism and Hospitality Committee and a former head of Delhi Tourism. So he will also be joining with us. So we welcome him. And I have also been told that Mr. Vinod Jutsi, the former Secretary, Government of India, I think he has gone to Uttarakhand on an election duty, so he would not be able to join with us. He is the former election commissioner, Government of India. So they are the set of people who are going to deliberate and give their opinion. Ladies and gentlemen, let me also share it with you. We are going to make a detailed report which will be submitted to the Government of India, Ministry of Tourism, and also to Niti Aayog, that the outcome of this border tourism webinar series. Let me share it with you. Mr. Rajan Sehgal has played a very important role while convincing the Ministry of Tourism, Government of India about this series.
and my colleague Sulegna and Sanchit, they have been working on this border tourism webinar, from the day one. So, ladies and gentlemen, with this note now, let me request Mr. Pawan Sagar Jain, if he's there, and if he's not there, then I will request Mr. Rajan Sehgal to kindly initiate the dialogue today, and then we will go to the speaker one by one. Maybe Mr. Rajan Sehgal has to play a dual role today, not as a co-chair, but also as the initiator of this border tourism webinar series. Over to you, Mr. Sehgal, for your initial remarks. Yeah, good afternoon. Thank you very much, Dr. Yogesh Srivastava. On behalf of PhD Chamber of Commerce and our Chairman Tourism Committee, Mr. Pawan Sagar Jain, we welcome all the panelists on this 17th Border Tourism webinar on the state of Uttar Pradesh. And it's as Dr. Yogesh Srivastava ji said, we have started this webinar with the Ministry of Tourism and Niti Aayog, because they like this idea very much, and this is the need of the future travel. The border tourism plays a very, very important role in the coming travel and tourism, because our border areas are very open, unexplored, and there are a lot of new experience which our domestic traveler can gain. And slowly, once the international borders will open, I think we can promote this area among the international traveler also. And we have covered almost 16 states and 16 border districts with all the principal secretaries, the district commissioners from the travel and tourism industry, hotelier from that particular state. So they have given us a lot of inputs, and our tourism committee team has made a detailed report which will be submitting to that Ministry of Tourism and Niti Aayog. And it will play a very, very important role in the coming future. So it's always better to listen to the experts who are there on our panel today. So I will open this forum, and I welcome once again on behalf of leadership of PhD CCI and on our behalf of our tourism committee. So thank you. I will welcome all. Over to you, Dr. Sir. Thank you, sir. Thank you, Rajan sir. Thank you very much for your wonderful this initiative. I once again say that, and at the same time, ladies and gentlemen, it's a very proud moment to share it with you when we are a platform of a, I would say, uniform platform, not only for tourism but for all the other concerned stakeholders. They come deliberate on us. On our platform. And when Government of India, basically in one of the questions in the Parliament, has already written, there is only one chamber in India, that is the PhD Chamber of Commerce and Industry, who works on the heritage tourism. And I'm so happy to share it with you. On the other day, when I was speaking to a very senior officer, Ministry of Tourism, Government of India, they said, you are the only chamber who is speaking on border tourism, and then you are doing a series continuously for the last so many months, and then taking this initiative to different locations. And at the same time, we are also trying to not only making people aware, but at the same time sensitize all the concerned stakeholders how these tourism destinations are certainly going to be a popular destination in future as far as these border districts, aspirational districts are concerned. So ladies and gentlemen, I'll not take much of time. I'll request my colleague Sulegna to kindly show a brief presentation on this border tourism on Uttar Pradesh, and then we will request one by one the learned speakers which we have today to speak on this subject. Over to you, Sulegna, for this presentation. Thank you, sir. I hope the screen is visible. Much visible, and I am requesting each one of you to kindly mute yourself so that there is not a background echo or background noise. Sanjay, you need to, you being the admin, you need to basically ensure that. Okay, so this is this is a PPT on promotion of border tourism in Uttar Pradesh that we have prepared. It basically will show the border districts of UP and the focus district, which is Shravasti. So Uttar Pradesh shares its borders with Nepal and also famous for its Buddhist circuit, as we all know.
So these are the border districts of Uttar Pradesh. There are 7 border districts in total, out of which 4 are aspirational districts, and we are focusing on Shravasti today. Shravasti is located in the northeastern district of UP, and it's very close to River Bapti. And as mentioned, it is known for its Buddhist and pilgrimage sites. Though there are limited tourist places in Shravasti, but the certain places, hold very much importance, like the Vibhuti Nath Temple, the Suhail Dev Wildlife Sanctuary, Vipassana Meditation Center. Challenges and way forward. We have been deliberating this for quite long when we started this series in the month of June 2021. So far, we have covered almost, including today's one, we have covered 17 states, border states, and we end in Sikkim, which is the last border state, which will be held this month itself. So these are the border tourism webinar series that we have been conducting so far, and this month we'll conclude it. And probably in the next phase, we'll focus on the different districts and engage with other stakeholders who are, involved in this entire process, like BSF, Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense. That's all from my side, sir. Over to you. So Lagna, I would request you to kindly also share the presentation of the Ministry of Tourism, Government of India, so that in one go people will be able to aware that what we are trying to do and what Ministry of Tourism is basically trying to communicate through their presentations. If you can show that presentation also. So we have the videos from Ministry. Yeah, please go ahead. Yeah. Please go ahead with the videos. That is a very big thing to understand it in a better way. How far would you go for love? He built a palace of memories, of white minars and precious stones, of perfect design and unmatched grace. And to go further in love, he built his tomb next to her. The incredible Taj Mahal, poetry of love. How far would you go for love? He built a palace of memories, of white minars and precious stones, of perfect design and unmatched grace. And to go further in love, he built his tomb next to her. The incredible Taj Mahal, poetry of love. Thank you, Sulagna. Thank you very much for showing this. In fact, the poetry of love, the famous Taj Mahal, which is a pride of India. We have been seeing it for decades, and at the same time, what we are going to discuss today, what we are going to talk today, what we are going to deliberate today, we want more and more such kind of tourism products must be in our kitty, so that people should not only come to see Taj Mahal, but also, I'm using the word also, the other areas, the other culture, the heritage of India, and especially the border districts, which we are going to talk about today, about Shravasti. And you have already shown that how this entire district has got so many connects as far as tourism is concerned, and at the same time, how this districts can be promoted into a better and I would say a place which will certainly be on the global map of tourism, not only in India, but also in the world, so that people will come and see this and learn that the heritage and the culture which is there in India for thousands of years are really, making this citizens of the country proud, and at the same time the people over here, and then people especially in the tourism and hospitality sector are making this so incredible. So with this note, now ladies and gentlemen, let me see if my chairman Mr. Pawan Sagar Jain, if he has joined. I can't see him. Has he joined, Sulagna?
Sir, No. he is on the way. He'll be Okay, so joining he has from not his joined. No mobile, problem. so- No problem. The show must go on. So let me now request our chief guest of the day, Mr. Mukesh Kumar Meshram, Principal Secretary, Tourism and Culture, Government of Uttar Pradesh, if he is there, if he can kindly share his thought on this. And I'm very happy to share it with you that our UP chapter led by Mr. Atul Shrivastava and team has played a very important role while not only getting a meaningful participants, but at the same time speakers also. So may I request Mukesh ji to kindly share, sir, your thought. आप अपने thought बताएं कैसे हम इस districts को हम आगे tourism के map पर लेकर के आए और कैसे उत्तर प्रदेश में maximum tourist inbound tourism को हम बढ़ावा दें. Over to you, Mukesh Kumar Meshram Saab. Ladies and gentlemen, we welcome on behalf of PhD CCI. He is the Principal Secretary, Tourism and Culture, Government of Uttar Pradesh. A big round of applause for him for his time given it to PhD CCI and especially to the tourism and hospitality sector. Over to you, Mukesh sir. Thank you, PhD Chamber of Commerce and Industries. उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि बहुत सारा पोटेंशियल है और इसमें there are lot of destinations. We have already identified 12 major destination, tourist destinations. In the last few years, we have started developing infrastructural facilities as well as some other kind of facilities to hold back the tourist at least for a day or two, like light and sound shows. We have already started at few destinations. Then cruise tourism. Now we are basically focusing on some of the unexplored or lesser known places, because as I said at the very outset that UP is full of treasure. इतने सारी जगह हैं हमारे यहाँ पे जिनको हम लोग पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से लेकर के आए. जैसे बुद्धिस्ट टूरिज्म है, so 6 major places related to the life of Buddha are located in Uttar Pradesh. Sarnath, Kushinagar, Kaushambi, Sankisa, Shravasti, Kapilvastu, ज्यादातर सभी लोगों को पता है. वहीं अक्रॉस द बॉर्डर नेपाल की तरफ लुम्बिनी है, वो कपिलवस्तु भी अपनी इलाके में दिखा करके उसको एक बड़े लेवल पर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश में रहते हैं. 6 के अलावा 4 और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमने बुद्धिस्ट रिलेटेड आइडेंटिफाई किए हैं जिनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. उसमें से महाराजगंज में 2 पड़ते हैं, देवदह और रामग्राम. जो गौतम बुद्ध की ननिहाल मैटरनल जो उनका साइट है उसको देवदह, और इसी तरीके से यशोधरा का जो प्लेस रहा है ननिहाल वो है रामग्राम. इन दोनों में माउंट है पुराने. अगर अच्छी तरीके से एक्सकेवेशन किया जाए तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम जानकारी है लोगों को. अब दूसरी साइड में नेपाल ने अपने यहाँ पर इसी तरीके के किसी प्लेस को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये जगह है वो जो इनके ननिहाल से जुड़ी हुई है. अब उसको लैंडस्केपिंग करके डेवलप करके अब वहाँ पर टूरिस्ट को उन लोगों ने लेकर जाना प्रारंभ कर दिया है. इसी तरीके से हमारे यहाँ पे अतरंजी खेड़ा है, हमारे यहाँ पर देवगढ़ है. देवगढ़ ऐसी जगह है कि विच हैज क्लस्टर ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स. इट्स वेरी ओल्ड kind of place and one can find ancient architectural beauty in this place. बड़े अच्छे पुराने टेम्पल्स विद्यमान है. इसी तरीके से इको टूरिज्म में सोनभद्र ऐसी जगह है, मिर्जापुर, बुंदेलखंड के एरियाज या तराई का एरिया जहां पर वाटरफॉल्स अवेलेबल हैं. देवदरी, चूनादरी, कई तरीके से जो दरी है फॉल्स के तौर पर, वाटरफॉल्स के तौर पर हमारे यहाँ.
स्थित हैं उनको भी हम किस तरीके से लोगों के सामने पेश करें, एक बड़ी चीज है। सलखन फॉसिल पार्क है, इतना ओल्ड फॉसिल पार्क, यानी जहां हम लाइफ के जो अवशेष रिमेन्स कहीं देखना चाहें तो उन्हें सलखन पार्क में ले जाकर दिखा सकते हैं। करोड़ों साल पहले का ये जगह है, करोड़ों। तो ऐसी जगहें भी यूपी में हैं। और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल, रिलीजियस, टूरिस्ट प्लेसेस की तो कोई कमी नहीं है थ्रू आउट। जो पवित्र गंगा जी हैं, गंगा नदी है, बिजनौर से लेकर बलिया तक अपने आप में सबसे लंबे स्ट्रेच में उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अर्थ गंगा के तौर पर ये कंसेप्ट आया कि हम कैसे इस प्लेस के आसपास टूरिज्म डेवलप करें, ताकि जो गंगा ग्राम है, गंगा सरोवर है, उससे जुड़े हुए लोगों को हम इससे जोड़ सकें। ये बड़ी अच्छी बात इस बजट में हुई है कि नदी के दोनों तरफ 500 मीटर के डिस्टेंस तक दोनों साइड along the rivers, now we will have to take up organic agriculture, horticulture, social forestry। तो इससे ये होगा कि न केवल जिसे हम पहले कहा करते थे सदा नीरा, ये नदियों में हम साल भर जल प्रवाहित कर पाएंगे, बल्कि दोनों तरफ एक बड़ा अच्छा फ्लोरा फौना भी डेवलप होगा और साथ ही साथ जो नदी से उसकी सिनर्जी होती है नेचर की, वो बनी रहेगी। इसके ऊपर हम लोग काम करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्टेट आर्कियोलॉजी के अधीन, उसमें से 14 मॉन्यूमेंट्स वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड अंडर द स्कीम ओन द मॉन्यूमेंट, स्मारक मित्र के तौर पर। And already 2 of these monuments we have given to GLA University. They have been kind enough to take up the maintenance and upkeep of these monuments under CSR. इसी तरीके से now 12 of these monuments are left. Later on we will again identify some more number of monuments or the places which are of touristic interest, which are very important archaeological sites, and certainly a few takers come forward. इसमें से हमारे पास में जो चुनार फोर्ट है, it's very old fort on the bank of river Ganges located in मिर्जापुर district. and चुनार फोर्ट को कोई अगर लेता है, उसको कई सारी एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज अंदर वो डेवलप कर सकते हैं, obviously without disturbing the originality of that place. They can actually add on certain things. और ये लोगों का एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए एक अच्छी जगह होगी कि वाराणसी से लोग वहां पर आए, पहुंचे, उसको डेवलप करने के बाद में टेंट सिटी लगा सकते हैं, वहां पे रात में रुकें, स्टार गेजिंग करें, एडवेंचर टूरिज्म या रिवर में क्रूजिंग। शाम के समय एथनिक फूड कैन बी सर्व देयर, वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको हम वहाँ शोकेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको हम आगे टेकअप कर सकते हैं। एक यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018, मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इन्वेस्ट करें और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके के टूरिस्ट को हम यहाँ पर किस तरीके से लेकर आए। इसमें एग्रो एंड रूरल टूरिज्म का भी स्कोप है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर कहीं स्ट्रॉबेरी हो रही है, कहीं लीची हो रही है, कहीं बनाना फार्मिंग है, कहीं पर मैंगो फार्मिंग है। अराउंड हमारे लखनऊ के इवन मैंने देखा है वेस्ट में रटोल के आसपास, लखीमपुर खीरी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग एग्रो एंड रूरल टूरिज्म पे जा सकते हैं, क्योंकि लोग पोस्ट कोविड सर्टेनली द ट्रेंड हैज चेंज। नाउ
people will certainly go for outing. They will go towards the nature. They would certainly focus on less crowded places. अभी तक तो इन जगहों पे जाते थे, तो obviously then we can see very much scope in the rural areas जहां पर उनको दिखाया जाए कि किस तरीके से खेती हो रही है. बच्चों को भी वो ले जाएंगे, and there will be connect between what is modern and our cultural heritage. We can showcase them कि भाई गांव कैसे थे. लोगों को नहीं पता हंडियाओं में कैसे खाना बनता था, या कैसे जो पिसाई होती थी हाथों से, दाल की हो या और किसी चीज की हो. तो ये सारी चीजें हैं, एक लर्निंग भी बनती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, एंड इट जनरेट्स एक्सपीरियंसेस, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस. सर्टेनली कई फैमिलीज हैं जो इन जगहों पर जाना पसंद करती है. क्योंकि मैं बड़ा छोटा सा एक उदाहरण देता हूं. मैं मेरठ में जब डीएम था, दिल्ली से एक फैमिली आई थी मिलने के लिए, पुराने दोस्त. उनको मैं अपने डीएम कैंपस के खेत में ले गया. बच्चे को मैंने बताया, उनका जो बेटा था 6th में, उसको मैंने बताया कि देखो ये आलू के प्लांट्स हैं. बहुत देर तक के बच्चा देखता रहा प्लांट को, और फिर कहता है अंकल इसमें आलू तो कहीं फले हुए नहीं है. मैंने कहा बेटा वो जमीन के अंदर होते हैं, दिखते नहीं है. तो स्टडी करते हैं लोग, बट जो स्टडी है उसको एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब इंटरेक्टिव मोड में हम जाते हैं. तो टूरिज्म एक बहुत ही ओपन किताब को पढ़ने की तरह है कि वर्ल्ड में चारों तरफ इतने चैप्टर्स, इतने लेसन्स हमारे आसपास फैले हुए हैं, और इसको हम आगे बढ़ाएं. अभी तक होता क्या है, कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो इंडिया में टूरिज्म के नाम पर वो पिलग्रिमेज को टूरिज्म मान बैठता है. वो कहता है कि साहब हाँ भाई टूरिज्म के नाम पे परिवार को ले जाएगा वैष्णो देवी, तिरुपति, नासिक, शिरडी, वो पिलग्रिमेज है. पर कहता है कि साहब हम तो बहुत टूरिज्म करते हैं. ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म एक पार्ट है, बट टूरिज्म इसके बियॉन्ड भी और भी चीजें हैं. मतलब इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस टू बी ट्रेवल्ड बाय the families, the people of the society, and then only they can learn lot many things from different places. Because जैसा मैंने कहा, India has a rich and diverse cultural heritage, and this cultural heritage can only be grasped by visiting or seeing, watching, and then only they can learn from this. And इसी की कंटिन्यूटी आगे हम बढ़ा पाएंगे. अदरवाइज अभी तक हो ये रहा है कि हम अपने यहाँ का कल्चर धीरे धीरे करके, देयर हैज बीन अ वाइड गैप नाउ, वो भूलते जा रहा है और बाहर के कल्चर को अडॉप्ट कर जा रहा है. कल्चर, कुजीन, क्राफ्ट सब जगह मिल जाएगी. तो इन यूपी में तो पर्टिकुलरली आप जाएंगे कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. वी हैव आइडेंटिफाइड particularly for this purpose that people should know that district at least by some product कि ये यहाँ का है. Saharanpur is known for this, Muradabad is known for that, और Siddharthnagar for that matter is known for Kala Namak rice और बांसुरी, फ्लूट, पीलीभीत. तो ये सारी चीजें हैं, इनको लेकर के काम करने की जरूरत है. Obviously we want that there should always be some collaboration with the industry, with the academicians, because academics, they can provide some kind of input out of the researches going on. Then we also want to collaborate with the consultants, because जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और बाकी सब चीजों के लिए हमको काफी जरूरत है. सो वी आर क्वाइट ओपन टू वर्क विद डिफरेंट पार्टनर्स इन दिस रिगार्ड, एंड दैट इज व्हाट आवर यूपी टूरिज्म पॉलिसी आल्सो प्रोवाइड्स. अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम टेंटेड सिटी लगाना चाहता है, या कैरावैन टूरिज्म, या विलेज टूरिज्म, 20%
of the capital investment we will provide to that investor. इवन हमने अभी जो इंक्लूड किया है कि रोड साइड ढाबा, लोग बहुत सारे चाहते हैं कि सिटी के नियर बाय किसी ढाबे में जाकर के कुछ वहां का एक टिपिकल टाइप का खाने को एक्सपीरियंस करें, हम उनको भी 20% ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारे यूपी में टूरिज्म पोटेंशियल में कैसे इसको बढ़ाया जाए, आगे कैसे क्या हो सकता है, गैप आइडेंटिफिकेशन है या prospects which they want to identify and submit to us in the form of recommendations or suggestions, we are also providing 10 lakh rupees for that purpose. कोई भी हो सकता है, any organization, any person. इसके अलावा हम जो नॉन फिजिकल एंड फिजिकल दोनों तरीके की सब्सिडी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग टू द इन्वेस्टर। लोग आए। एक लास्ट चीज, we have more than 70 hotels. Long back, tourism department had established these hotels or guest houses with very pious purpose, obviously, but later on, as you know, government cannot actually run the hospitality sector with the kind of attitude and behavior and atmosphere which private sector can create. हमारे होटल में अगर कोई आएगा बैग लेकर के, तो सबसे पहले तो हमारा रिसेप्शनिस्ट उसको ऐसे घूर के देखेगा कि भाई तू यहाँ क्यों आ गया, और अगल बगल कोई नहीं मिला क्या तेरे को, क्योंकि 2 दिन तू अगर यहाँ रुकेगा तो 10 बार जो है फोन बजाएगा, मेरा कान बजाएगा कि साहब तौलिया गंदा है, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। वो चैन से सो रहा है, उसको मंथली फिक्स तनख्वाह मिल रही है, क्यों बॉदर करेगा? दैट्स व्हाई more than 30 hotels are running under means tremendous losses. So that's why we are offering कि PPP मॉडल पे कोई इनको ले ले, लैंड एंड एज इज वेयर इज बेसिस पे बिल्डिंग ले ले, उसको तोड़ ताड़ करके होटल की अच्छी अच्छी चेन आ रही है इंडिया में, उनके साथ फ्रेंचाइजी ले ले, टाई अप कर ले, डेवलप करे, चलाए, तो एक तो लैंड उसको मिल जाएगी अच्छे लोकेशंस पे, और इसमें भी 15% सब्सिडी हम उसको अलाउ करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों चीज हो गई, लैंड भी उसको हम अवेलेबल करा रहे हैं लीज पर, तो सब्सिडी भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो एक एश्योर्ड गारंटी है। ऑब्वियसली पोस्ट कोविड टूरिज्म इज आई एम श्योर दैट टूरिज्म विल बी ऑन ट्रैक। लोग थक गए हैं कैद होकर के, घरों में पड़े पड़े कब तक के बोर हो चुके हैं, अब वो सब निकलना चाहते हैं। जहां मौका मिलेगा आप देखिएगा, बिल्कुल जैसे स्कूल की घंटी बजती है और छूटता है, बच्चे घर की तरफ भागते ना दौड़ते हुए, वैसे जिस दिन ये सारे बाइंडिंग्स खत्म होंगे लोग भागने लगेंगे। और अभी से मतलब इट इज अ गुड साइन दैट एसओटीसी और यात्रा और मेनी ट्रेवल जो एजेंसीज हैं उन्होंने एडवर्टाइज करना चालू कर दिया, दे आर ऑफरिंग वेरी गुड डिस्काउंट्स आल्सो। तो सोच सकते हैं कि आदमी यायावर तब से रहा है जब वो आदमी था। ऑब्वियसली पहले शिकार की खोज में जंगलों में भटकता था, कहीं जाता था, यात्रा करने जाता था, बिजनेस के लिए जाता था, पर यायावरी घुमक्कड़पन उसकी आदत है। एंड टूरिज्म इज द बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी फॉर हिम। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के साथ यूपी के पोटेंशियल को एनकेश किया जाए। वी लैक certainly in branding, marketing and in promotional activities। उसके लिए आप लोगों के suggestions और आप लोगों के जो observations होंगे about यूपी स्टेट particularly, वो हम बहुत ही full heartedly accept करेंगे। और आप लोगों को धन्यवाद। Thank you very much for giving me this opportunity to speak with so many distinguished webinar participants. Thank you very much.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड सर। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। आपने कई बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला, कई बिंदुओं पर सर आपने बताया कि कहां कहां पर यूपी टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो किन किन तरीके से है। और मैं आज इस फोरम पर आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, अर्थ गंगा पर हमारे पीएचडी चैम्बर यूपी जो हमारा चैप्टर है उसने और आर्थर डी लिटिल ने मिल करके एक जो है इसके ऊपर डिटेल्ड गैप आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो है बना करके दिया। और मैं समझता हूं कि सर आपके साथ स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट और पीएचडी चैम्बर का एक बहुत बड़ा जो है एक सहयोग जो है, मुझे लगता है कि हम लोग कई क्षेत्रों में आपके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अतुल श्रीवास्तव, जय श्रीवास्तव, वो जरूर आपके पास आए। और कई जो मुद्दे आपने उठाए जैसे ओडीओपी, मुझे ये बताते हुए सारे दर्शकों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जब ओडीओपी का यहाँ पर शुभारंभ 2018 में हुआ, माननीय हमारे योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी हमारे इस प्रोग्राम में आए थे। 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 प्रोडक्ट। और जैसा कि सर ने, मुकेश सर ने यहाँ पर सबको बताया कि भाई रूरल टूरिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग जा करके देखना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं। उन्होंने अभी मेरठ की आपको एक छोटी सी जो घटना बताई कि जिसमें एक 6ठी क्लास का बच्चा जो है उसको नहीं मालूम कि भाई आलू जो है वो जमीन के अंदर है कि आलू का पेड़ होता है। मैं ये समझता हूं कि अब ये समय है कि जब हम आइडेंटिफाई करके इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं। मैं यूपी चैप्टर, पीएचडी चैम्बर के जो हमारे कई मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डिटेल्ड प्रपोजल बनाएं, सर के पास लेके जाएं कि सर हम इसमें वेबिनार सीरीज करना चाहते हैं, हम लोगों को लेकर के जाना चाहते हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन का जो जिम्मा है वो चैम्बर का प्लेटफॉर्म उठा सकता है। और हमें लगता है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि चूंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और मुझे उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार है, मैं इस वजह से भी कह रहा हूं, और मैं इस वजह से भी नहीं कह रहा कि मैं वहीं पर मेरा जन्म हुआ है, बट मैं इस वजह से भी कह रहा हूं कि जो चीज आज यूपी टूरिज्म ने क्रिएट करी है, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी मैं कुछ दिनों पहले अयोध्या गया था सर, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि कोई मेरे को वहां पर किसी ने ये जैसे ही मैंने तौलिए की बात करी, इमीडिएट 2-2 टावल लेकर के वो लोग आए। यूपी टूरिज्म का जो है वो गेस्ट हाउस था। मुझे बताया गया कि मैं जिस कमरे में रुका हूं वहां माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी जो है रुके हुए थे 2 दिन पहले। लेकिन द वे पीपल हैव ट्रीटेड अस, इट इज ट्रेमेंडस। बेहतरीन तरीके से मैं वहां की डायरी में भी नोट करके आया, अपना मोबाइल नंबर भी वहां मैं छोड़ करके आया कि मैं इस तरह की बात हर प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि यूपी टूरिज्म हैज गॉट अ सी चेंज। मैं समझता हूं 360 डिग्री चेंज है। हो सकता है अयोध्या में है चूंकि, तो वहां हमको बुद्धि कुछ ज्यादा आ जाती है, राम की नगरी है, बट एट द सेम टाइम जो वहां पर हमको पूरे हमारे पीएचडी के डेलीगेशन को, मेरे साथ एक हमारे सीनियर मेंबर मुकेश जी गए हुए थे, साथ में मुकेश बहादुर जी, वो भी थे, अपने परिवार के संग थे, बहुत ही अच्छा एक हमें ट्रीटमेंट मिला। आपने दूसरी बात करी सर कि ये टाइम है, मेरा भी ऐसा मानना है सर, आई वांट टू सेकंड योर स्टेटमेंट, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन के साथ ही कनेक्टिविटी। इन अगर 3 सी पे हम काम करेंगे यूपी टूरिज्म के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो मुझे लगता है कि पीएचडी चैम्बर का या किसी और एसोसिएशन का, मैं केवल पीएचडी की बात नहीं करूंगा, जितने भी और मेरे दोस्त लोग फिक्की में काम कर रहे हैं या सीआईआई में, इन सबका बहुत बड़ा रोल है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे तो बताएं ही बताएं, लेकिन मीनिंगफुल लोगों को लेकर के आए। सर आपने एक अभी जो बेहतरीन आपने बताया कि यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाए। हमारे यूपी चैप्टर में कई यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमको एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट बना करके देना चाहिए, जैसे हमने अर्थ गंगा के लिए बना करके दिया। और आपने बताया कि दोनों जगह पर जो है वो खेती भी उसी तरह की हो रही है जिससे लोग रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वरन ना ये कहते हुए कि चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारा कंप्लीट पीएचडी चैम्बर उत्तर प्रदेश चैप्टर लखनऊ से रन कर रहा है। हमारे मिनिमम 380 मेंबर वहां पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर, अगर हमारे किसी इसमें पैनल में हैं तो अतुल जी आप जरूर इस पे कंप्लीट प्रपोजल बनाएं, सर के पास जाएं और यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी चैम्बर
हमेशा तत्पर रहेगा। ये मैं विश्वास सर आपको दिलाना चाहता हूं और अपने माध्यम से, अपने चैम्बर के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हम हाथ से हाथ मिला करके सर आपकी डायरेक्शन में हम यूपी को ग्लोबल टूरिज्म के मैप पर लेकर के आएंगे। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि चूंकि मैं बनारस भी गया हूं, मैंने सारे वहां पर प्रोग्राम्स देखे हैं, बट एट द सेम टाइम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग उत्तर प्रदेश is going to be Uttam Pradesh as far as tourism products are concerned, and I am very emotional about it. And let me thank once again मुकेश कुमार मेश्राम साहब, जिन्होंने आज हमें समय दिया, हमें डायरेक्शन दी कि कैसे चैम्बर और चैम्बर के मेंबर पीपीपी मॉडल पर भी 30 होटल उन्होंने बताए कि जो कि आकर के आप हाथ मिला सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं, आपको लैंड मिलेगी, आप अपने वहां पर अल्टरेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को आप लेके आ सकते हैं। और भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई थी सर, मैं वो मेंशन करना चाहूंगा कि अगर एक फॉरेन टूरिस्ट अगर देश के किसी भी कोने में आता है तो वो 3 जॉब जनरेट करता है। तो हमारा ऐसा मानना है सर कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जॉब क्रिएटर है, जॉब देती है, और अतिथि देवो भव जो हमारे संस्कारों में है, हमारे महापुरुषों ने ये कह करके गए हैं, ये उस भाव को आगे बढ़ाती है। और वसुधैव कुटुंबकम को पूरे समान रूप से लेते हुए हम ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश आएं और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को फील करें, उत्तर प्रदेश के संस्कार को, उत्तर प्रदेश की कल्चर को फील करें, एंड make sure that Uttar Pradesh is going to be Uttam Pradesh. So ladies and gentlemen, with this note, I am very thankful to Mukesh ji. Mukesh ji, मैं जब भी next लखनऊ आऊंगा मैं जरूर आपसे मिलूंगा, and this is my request to you sir, that please allow, give us, direct us more and more to PhD chamber, especially Uttar Pradesh chapter. Now I will go, before I go to the other speaker, may I request my colleague Sulagna ji, please show a video on Uttar Pradesh if you have, so that our people must know which are the tourism products we are talking about. Over to you, Sulagna. Sure, sir. A tradition older than time. A sea of humanity, united in conviction, an expression unlike any other. A journey to find yourself. Take the leap and experience infinity. Because sometimes, in the middle of the ordinary, life gives you the extraordinary. Kumbh. Come, live the spectacle. Incredible India. Thank you very much, सुलग्ना जी। आपने दिखाया इनक्रेडिबल इंडिया, और जो कि कुंभ के बारे में बता रहा है। और आप ये देखें, इतना बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम, मैं इसको प्रोग्राम वर्ड कह रहा हूं, जो कि कुंभ का मेला हुआ, और एक नए चीज की भी कहीं से मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कहीं पर कोई जो है भगदड़ मच गई हो या कहीं पर किसी की चोरी हुई हो। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं इस वाले प्रोग्राम में भी था। तो व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि देयर इज अ फीलिंग इन उत्तर प्रदेश कि जितने भी सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है और ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इससे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंजन है और जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सो विद दिस नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, आई विल इमीडिएटली गो टू मिस्टर राम कामराजू, सीनियर कंसल्टेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एड्रेस दें। ओवर टू श्री राम कामराजू, सीनियर कंसल्टेंट नीति आयोग। Thank you, Dr. Yogesh Srivastava, Principal Secretary, Ministry of Tourism, Government of Uttar Pradesh, and other senior officials from PhD Chamber,
and to the participants of the webinar. I honestly thank all of you for giving me this opportunity to just share my ideas and thoughts on the development of water tourism, especially in the district of Savasti, aspirational district of Uttar Pradesh. So PhD Chamber, I would especially congratulate them for coming out with this unique program, unique project. I won't say program, unique project of projecting the border tourism, tourism in the border districts of the country. And there happens to be many of them the aspirational districts, as in the case of Uttar Pradesh, the Savasti district. So Savasti as an aspirational district has been performing very well since the inception of the program. And they on an overall, they have shown around 33% of improvement since inception of the program. They have almost saturated the most important critical indicators. So in respect of education, say drinking water facility, girls' toilet in the schools, and also in financial inclusion, and also education and health, health and nutrition part of it. So by saying this, what I'm trying to convey is that the district and the district administration has already been well versed with the template of the aspirational districts program, which is basically the convergence, collaboration, competition, and Jan Andolan. So using the same principles and the template, we can also apply to the tourism sector in this particular district, and all efforts should be made to make it as a tourist attract destination for the state of Uttar Pradesh. So I would also suggest the PhD chamber that while other two aspirational districts, say the neighboring districts of Savasti, Balrampur and Baharaj, they also happen to be border districts and also happen to be the aspirational districts program. Therefore, this package for the Uttar Pradesh should also be combined with these three districts so that there would be a lot of economies of scales and also an advantage synergies among themselves to be as a tourist destination for any of the potential tourists who would like to visit. So therefore, what happens is that if with one visit they would cover all these three districts, and there would be also good livelihood opportunities and all other opportunities which I have already been pointed out. If we improve tourism, what would be the ultimate outcomes or follow of this happening to the economy of these three districts? And lastly, I would also like to suggest the PhD chamber that and all other participants in this webinar that recently on January 19th, Honorable Prime Minister, while reviewing the aspirational districts program, has unveiled a new program of the ministries of the Government of India, wherein he has in a way challenged the ministries to identify KPIs of that ministry, and also identify the most underdeveloped districts in those KPIs across the country, and try to emulate the aspirational district template of collaboration, convergence, and competition, and try to showcase the improvement after 1 or 2 years time. So in this regard, the Ministry of Tourism also has identified 6 KPIs and also identified around I think 9 districts for them to implement this particular program. So PhD chamber can also collaborate with such a program with the Ministry of Tourism, because you are already undertaken the
undertaken the project of improving the tourism in the border districts of the country. So you can also have a similar template or a program in collaboration with Ministry of Tourism to run this particular thing for the implementation, for smooth implementation, monitoring, and also thereafter evaluation of this particular initiative which we have begun. And finally, I would like to say that Niti Aayog is all into this particular initiative of PhD CCI, and we extend our full support and cooperation in making this successful. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you very much for your wonderful words and always your support to this important webinar series. And as I have said at the outset, that we would certainly be coming out with a detailed report on this, which we will be submitting it to Niti Aayog and to all the concerned stakeholders. I have already told my colleague Sulagna and Sanchit that we must submit this report to all the concerned stakeholders and also to the Principal Secretary Tourism, Government of Uttar Pradesh, Mukesh Kumar ji, and also to all meaningful people, those who are not only connected with this border tourism series, but at the same time, our recommendations also that how government is going to take such initiatives and what kind of role industry can really put in over there. So before I go to the other speaker, we have with us today Mr. Atul Shrivastava. He is the resident director. Atul ji, आपने कई important programs जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के किए और आपके पास एक बहुत अच्छा एक जो है मैं समझता हूं कि एक स्पेस बिल्डिंग जो आपके पास है और उसमें हम क्यों ना टूरिज्म की ऐसी कोई एक जो है हम वहां पर एक सीरीज स्टार्ट करें, लखनऊ से स्टार्ट करें और चूंकि मुकेश कुमार साहब हमारे संग जुड़े हुए हैं तो और हम कितने बेहतरीन जो अपने ऑडिटोरियम्स हैं उसमें जो हमारे डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो स्टैंडी के रूप में है, चाहे वो किसी और चीज के रूप में है, उसको हम उत्तर प्रदेश का जो हमारा चैप्टर है, यूपी चैप्टर जो हमारा पीएचडी चैम्बर का है, उसमें हम लगा सकते हैं। तो इन मुद्दों पर अतुल जी आप प्रकाश डालें और अर्थ गंगा प्रोजेक्ट जो आपने किया उसके ऊपर भी अगर आप संक्षेप में बताएं तो मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी और बाद में तो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी कि हमने टूरिज्म पे पिछले 10-12 साल में क्या किया, वो आप मुकेश जी को सबमिट कर सकते हैं। अतुल जी, ऑल योर्स, प्लीज स्पीक। थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से मुकेश सर ने बोला है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को लेकर ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, तो सर मैं आपको एक रिपोर्ट ऑलरेडी हम लोगों ने अर्थ गंगा के ऊपर सबमिट किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा अर्थ गंगा को उत्तर प्रदेश में दोनों किनारों पे किस तरीके से इको टूरिज्म को डेवलप करेंगे वो पूरा डिटेल रिपोर्ट है। सर ने उसको काफी अप्रिशिएट किया है और गोइंग फॉरवर्ड सर हम इस टाइप के नॉलेज रिपोर्ट मिलकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ और मुकेश सर के गाइडेंस में हम उसको सबमिट करते रहेंगे। सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि रूरल टूरिज्म को कैसे हम डेवलप करें, साथ साथ में इको टूरिज्म में हम लोग वर्क कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने राजन सहगल के साथ एक इको टूरिज्म पे वेबिनार किया था और काफी अच्छा वेबिनार था सर, उस पे हम लोगों ने भी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इस पे भी हम लोग यहाँ पर अपने ऑफिस में एक प्रोग्राम कर सकते हैं जिसपे हम सारे के सारे स्टेक होल्डर को बुलाकर फिजिकल इवेंट के साथ में हम वर्चुअल इवेंट भी करेंगे और हाइब्रिड मोड में भी करेंगे सर। थर्ड सर, एक बहुत अच्छा मुकेश सर ने बताया है कि जो 70 होटल्स हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 होटल्स जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि पीपीपी मॉडल पे हम एक अवेयरनेस कैंपेन करें विद इन ए मेंबर, पीएचडी के सारे मेंबर के साथ, और ताकि ये चीजें हम एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन उनको हेल्प कर पाए और एक सपोर्ट कर पाए उसको डेवलप करने के लिए। थर्ड सर, फोर्थ है कि जो 20% सब्सिडी सर ने बताया है कि रोड साइड ढाबा को प्रमोट करने के लिए उनके पास एक सब्सिडी है। उस सब्सिडी से रिलेटेड सर बहुत ढेर सारे नॉलेज नहीं है लोगों के पास। मैं जरूर चाहूंगा कि हम एक नॉलेज सीरीज टाइप भी एक वर्चुअल सेशन करें जहां पर जितने भी गवर्नमेंट के पास सब्सिडी है, स्पेशली टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास सब्सिडी है, तो उससे रिलेटेड हम प्रोग्राम करेंगे। सर मैं मुकेश सर से जाकर मिल लूंगा और मिलने के बाद में आई विल सबमिट इंटायर कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट और इसको पूरे सीरीज में पूरे हर मंथ में हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे। ग्रेट अतुल, आपने बहुत ही अच्छे बिंदुओं को उठाया और मैं आपसे एक ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहाँ टूरिज्म का जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, राजन सहगल जी हमें काफी
इसमें मदद करते हैं। हमारे को चेयर हैं, नेशनल को चेयर हैं हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी के। आप सुलग्ना जी और संचित जी से जरूर टच में रहें। और चूंकि फिल्म टूरिज्म पर भी हमने 2018 में हमने एक कार्यक्रम किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, जिसमें फिल्म टूरिज्म में सब्सिडी जो देने की बात थी, उसमें पीएचडी चैम्बर के पास एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, कनेक्ट है, जिसमें हम कई उन फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को लेकर के एक मंच पर लेकर के आए थे, जहां पर कि उन्होंने आकर के कमिट किया था कि हम मैक्सिमम अपने फिल्मों की शूटिंग जो है वो हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास उनके लिए एक कंप्लीट पॉलिसी थी, कंप्लीट उनके लिए एक सब्सिडी का प्रोग्राम था कि अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो आपको किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है फिल्म टूरिज्म के क्षेत्र में आपके साथ मदद करेगी। मैं समझता हूं कि चूंकि कोविड काल में ये कई सारे प्रोग्राम्स को हम नहीं एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ पाए। अब चूंकि कोविड धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहूंगा खत्म हो गया है, बट धीरे धीरे वो कम हो रहा है या खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जैसा आपने बताया, हमारे पास खूबसूरत ऑडिटोरियम है जहां पे कम से कम 200-250 लोग आ सकते हैं। आप इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है आप बनाएं, राजन सहगल जी से, सुलग्ना जी से, मेरे से आप बात करें, और फिर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश कुमार साहब के पास आप जाएं, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। चूंकि हमारा कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, टूरिज्म के क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र पर हमारा उत्तर प्रदेश चमके, यही हमारी एक कामना है। भगवान से हम यही कामना करते हैं कि जिस राज्य से हम आते हैं उस राज्य को हम टॉप पर देखना चाहते हैं। और जो आपने अभी होटल्स की बात करी, इनका डिटेल लीजिए। मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसको अपनी पीएचडी की वेबसाइट पर, जितने हमारे और एसोसिएशंस हैं, आज मैंने पूरे एसोसिएशंस की लिस्ट जो है अपनी कोलीग सुलग्ना जी को दी है, जिसमें हम हर एसोसिएशन से बात कर रहे हैं और हर एसोसिएशन के साथ हम शेयर करेंगे, जिससे कि मीनिंगफुल स्टेक होल्डर्स उसके साथ जुड़े और उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम को अपना सके। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अब मैं श्री सुनील सी गुप्ता, चेयरमैन नॉर्दर्न रीजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आईटो, इनके पास मैं जाना चाहूंगा कि सर आप अपने उद्बोधन को दें। श्री सुनील सी गुप्ता, चेयरमैन नॉर्दर्न रीजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ऑल योर सर, प्लीज गो अहेड। धन्यवाद डॉक्टर योगेश जी। To the wonderful team of PhD Chamber and my fellow enlightened speakers, ladies and gentlemen, good afternoon to all. सर्वप्रथम तो PhD Chamber को बहुत सारी बधाइयाँ for organizing this border tourism webinar series. और मैं PhD चैम्बर का बहुत आभारी भी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मैं इससे काफी कुछ सीख सकूं। बॉर्डर टूरिज्म, जैसा कि हम सभी मानते हैं, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेबरिंग ज्योग्राफिकल रीजन। और बॉर्डर टूरिज्म अब इस वक्त बहुत ही इमर्जिंग है और इसमें एक और फायदा है कि ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। और जैसे कोविड जैसी महामारी आती है या वॉर वगैरह होती है तो सबसे जल्दी ये रीस्टार्ट होता है। और इनबाउंड में भी हमने देखा है और ये मानना है कि सबसे पहले हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से ही इनबाउंड आएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी तो नहीं कहूँगा, राहत है कि अब थाईलैंड से, कोरिया से, श्रीलंका से, यहाँ से इंक्वायरीज और बुकिंग आनी भी शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अप्रैल मई से हमारे ग्रुप्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। श्रावस्ती की जहाँ तक हम बात करते हैं, करीब करीब 2.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट श्रावस्ती से गुजरता है। जो बुद्धिस्ट फोकस होने की वजह से यहाँ पर बर्मा, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और अब यूरोप से भी टूरिस्ट वहां बढ़ने लग गया है। यहाँ पर एक तो 2019 में भी और पहले भी
एक 4 दिन का श्रावस्ती फेस्टिवल मनाया जाता था यूपी टूरिज्म के द्वारा। तो मैं माननीय श्री मेश्राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब जैसे ही ये कोविड ओवर हो तो इस पर भी विचार करके 2022 या 2023 के लिए इसको भी दोबारा से एक रीस्टार्ट कर दें। श्रावस्ती को लेके मैंने कुछ कुलीग से भी बात की, तो कुछ हमारे सुझाव हैं अगर पीएचडी चैम्बर और यूपी टूरिज्म उन पर गौर कर सके। एक तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सेक्टर में काफी रोड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो श्रावस्ती से लुम्बिनी जाने की सड़क है, जहाँ सारा टूरिस्ट उसी पर ट्रैवल करता है, वहां पर अभी काम नहीं हो पाया है, जो कि बहुत जरूरी है। श्रावस्ती से वाराणसी की सड़क भी जो है वो काफी उपयोग में आती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है। श्रावस्ती में हमारे पास अच्छे लोकल गाइड्स नहीं है, तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और यूथ हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं यूपी टूरिज्म से दरखास्त करूंगा कि वो श्रावस्ती में एक लोकल गाइड कोर्स कर दें और उसमें भी लैंग्वेज स्पीकिंग हो, उनको प्राथमिकता दे दें। तो लोकल गाइड्स की बहुत आवश्यकता है। जो मॉन्यूमेंट है साहित्य माहित, उस पर भी मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। हमारे पास ऐसी कुछ नेगेटिव फीडबैक आता है कि वहां पर फेक मॉन्क हैं जो कि चैंटिंग वगैरह करते हैं और टूरिस्ट को मिसगाइड करते हैं, फेक गाइड्स हैं और बेगर्स हैं। तो अगर ये एक बहुत ही सिंपल सी समस्या है और इस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और चाहेगा तो बहुत आसानी से ये टैकल हो सकती है। एक जो लखनऊ से श्रावस्ती से जो आप नेपाल जाते हैं भैरवा बॉर्डर, तो वहाँ बीच में कोई भी वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, कैफेटेरिया नहीं। तो हमारा एक निवेदन है कि एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टॉयलेट फैसिलिटी हो, जो कि पेड फैसिलिटी हो, ताकि वो मेंटेन हो सके, और एक छोटा कैफेटेरिया हो ताकि चाय या बेवरेजेस हैं, सॉफ्ट बेवरेजेस हैं, वो मिल सके। जो श्रावस्ती की वेबसाइट वगैरह है वो भी सारी आउटडेटेड सी हैं, उनको भी अपडेट करना है, क्योंकि उनमें जो इन्फॉर्मेशन है होटल्स की, रेस्टोरेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, एंट्रेंस फीस वगैरह की, वो सब थोड़ी सी अपडेशन की जरूरत है। एक साहित्य माहित में जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन है कि मॉन्यूमेंट तो सनसेट पे बंद हो जाता है, उसके बाद वहां करने के लिए कुछ नहीं। तो इवनिंग एंटरटेनमेंट या इवनिंग एंगेजमेंट की बहुत जरूरत है, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है वो है साउंड एंड लाइट शो एट साहित्य माहित, और जो बहुत आसानी से हो सकता है, सेटिंग बहुत अच्छी है और वो काफी पॉपुलर, और टूरिस्ट को जो है शाम को करने के लिए इट विल बी ए नाइस एक्टिविटी। एक म्यूजियम भी हो सकता है जहाँ के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन जो बुद्धा जी का वहाँ पर रहा और जो उनके बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी है, क्रेडिबल हो, एक म्यूजियम हो और वो विजिटर सेंटर के साथ बन सके, तो इट विल बी गो अ लॉन्ग वे। जैसा कि टेक हमारे यहाँ सब जगह आ गया है, अब स्टार्टअप्स हैं और सब चीजों में हम लोग टेक में जा रहे हैं, हम लोग आपस में बात भी जूम से कर रहे हैं। तो जो मॉन्यूमेंट है और वहाँ जो फैसिलिटीज हैं उनको भी अपग्रेड करके, टेक से रिलेट करके काफी उन चीजों में काम हो सकता है। वहां पर हम लोग 20 साल से, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं 20 साल से 25 साल से हम लोग अभी भी टॉयलेटेड मॉन्यूमेंट की बात ही करते हैं। तो जो साहित्य माहित है वहां पर एक टॉयलेट की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टॉयलेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहां रात को कहते हैं पूरा अंधेरा हो जाता है उसके आसपास, तो स्ट्रीट लाइटिंग की भी आवश्यकता बताई गई है। एक और जो फीडबैक आता है उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर कर ले कि ये सारे डिवोटीज होते हैं, ये पिलग्रिमेज है एक्चुअली बुद्धिस्ट, तो वो वहां पर फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो उसको मना किया जाता है।
तो कोई ऐसा वाया मीडिया निकाल दिया जाए, कोई ऐसा जगह स्पेसिफाई कर दी जाए जो कि आप लोग मैनेज हो सके, फूलों की पत्तियां हैं, लेकिन वो जब उनको मना किया जाता है तो दे फील वेरी ऑफेंडेड। तो एक ये बिंदु है जो हमारे टूर ऑपरेटर्स ने बताया, तो अगर आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो आपने बॉर्डर टूरिज्म की बात की, तो इसमें रुपदिया का शायद जिक्र नहीं हुआ। लखनऊ से बहराइच होके इंडो नेपाल बॉर्डर है रुपदिया का, जो कि अभी ओपन भी है और आना जाना भी है। तो उस पर भी अगर थोड़ा सा बॉर्डर टूरिज्म में आप शारस्ती के साथ उसको भी ले लें, तो वो भी काफी लखनऊ और उसके आसपास के एरिया को पर्यटन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इन सब के साथ मैं माननीय मुकेश मेश्राम जी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और जब से वो आए हैं यूपी में टूरिज्म बहुत ही फास्ट ट्रैक पर हो गया है। तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज गाइडेंस, और पीएचडी चैम्बर का भी आभार। धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता साहब, थैंक यू वेरी मच। टूरिज्म जो है फास्ट ट्रैक पर हो गया है, ऐसा आपका जो उद्बोधन में आपने कहा। अब और हम भी तहे दिल से मुकेश जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि एक फोकस्ड अप्रोच और एक फोकस्ड तय सीमा के संग जो है इस बार जो हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म पूरा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, और जो फीडबैक मेरी टीम मेरे को बताती है, जैसे अभी अतुल श्रीवास्तव जी ने बताया, हमारे संग हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश की है, जय श्रीवास्तव हैं, तिथि कुमार हैं, ये सब जो हमको फीडबैक आता है, ये हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे मीनिंगफुल मेंबर्स को कनेक्ट करें विद दी टूरिज्म डिपार्टमेंट, सो दैट जो इनिशिएटिव्स टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लिए हैं उसको हम कैसे धरातल पर उसका क्रियाकलाप कैसे कर सकें। क्योंकि देखिए, आपने अभी एक बात बताई कि भाई कई साल हो गए, 20 साल के बाद भी हम बात कर रहे हैं कि वहां पर टॉयलेट होना चाहिए या फलां चीज होनी चाहिए। गुप्ता साहब, आपने इस चीज को देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि भाई हम इतने 70 सालों के बाद भी आज भी हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मुकेश जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा, हमें खुद भी एक बड़े जिम्मेवार नागरिक के रूप में जो है हमें हमारा एक कर्तव्य बनता है। हमें खुद भी ये देखना पड़ेगा कि हम क्यों जाकर के मॉन्यूमेंट्स पे जाकर के अपना नाम खोद के लिख रहे हैं, या वहां डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल रहे हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम वहां पर हम लिख रहे हैं। ये हमें भी देखना होगा कि ये हमारे फ्यूचर धरोहर के लिए। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सरकार के साथ साथ, सरकार के अधिकारियों के साथ साथ ये जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक की है कि हम कैसे अपने मॉन्यूमेंट्स को स्वच्छ रखें। ऑफ कोर्स आपकी बात बहुत बेहतरीन है कि उस मॉन्यूमेंट्स पे जो लोग जा रहे हैं उनको बकायदा सुविधा मिले, उनको बकायदा बेसिक फैसिलिटीज मिले। ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी सरकारें हैं या जितने हमारे अधिकारी हैं, या मुकेश जी ने इस बात को सुना तो कि कहां पर हमारे पास जो गैप्स हैं, उन गैप्स को हम कैसे अच्छे तरीके से हम फिल कर सकते हैं। और मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और हमको ये बताया गया है कि व्हेन द प्रोग्रेस हार्मनी हैपेंस द डेवलपमेंट हैपेंस बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम अपने आप को प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर कह रहे हैं, जो कि 116 साल से कह रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जो अधिकारी हैं उनका कर्तव्य बनता है, हमारे मेंबर्स का कर्तव्य बनता है। आपकी एसोसिएशन भी हमारी मेंबर है, हम आपके एसोसिएशन के मेंबर को भी इनडायरेक्ट तरीके से हम सर्व करते हैं। सबका कर्तव्य बनता है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, I now will go to Mr. Vivek Pandey, if he is there, President Travel Trade Association of Uttar Pradesh. I could not see him on the screen. Yes, now he is there. तो विवेक जी, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चूंकि फाइनल स्पीकर हैं, और ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है फाइनल स्पीकर के लिए, क्योंकि सारी चीजों पर हम बात हो चुकी है। तो हम आपसे चाहेंगे कि सर, आपकी क्या सोच है इस पर, आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं, और स्पेशली
बॉर्डर टूरिज्म का जो आज हमारा वेबिनार हो रहा है, इस पे कई जो सजेशंस हैं हम आपके उद्बोधन के बाद उसको भी लेंगे और आप हमें डायरेक्ट करें, हमें बताएं कि कैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ओवर टू श्री विवेक पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर योगेश एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल पैनलिस्ट। मुकेश सर, राजन भाई को हमारा नमस्कार। काफी दिनों बाद आपकी शक्ल देख रहे हैं सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसी बहाने हम सब कनेक्ट हुए हैं और आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएशन टेकन बाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप लोग डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो, यू नो हाउ टू कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट्स। योर selection of things, your selection of topics, your आप जो एक साल से स्टेप वाइज स्टेट वाइज जो कर रहे हैं, it's definitely commendable. I really salute to you and your efforts, your team efforts. Basically मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जितनी बातें कर ली हैं वो तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ ऐसा बचता नहीं जिस पर डिस्कस किया जाए। आप सब लोगों ने बात की कि बॉर्डर टूरिज्म, आप सब लोगों ने बात किया कि स्टेट टूरिज्म डेवलप हो, स्टेट टूरिज्म बढ़े। डेफिनेटली आप लोगों ने सोसाइटी कंसर्न भी बात की कि जब टूरिज्म बढ़ेगा तो सोसाइटी के लिए भी बढ़ेगा और मूवमेंट ज्यादा होगा। मेरा कंसर्न ये कि आज आप पता नहीं, आज अब न्यूज़पेपर में जब हमने एक न्यूज़ पढ़ी, सुबह बात चल रही थी ऐसे ही, तो न्यूज़ पढ़ी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड की जो पॉलिसीज हैं अब बहुत लिबरल कर दी हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए अब वो क्वारंटाइन होना और RT-PCR टेस्ट और ये सब कंपल्सरी हटा दिया है। लेकिन हर बार हमने ऑब्जर्व किया है कि हम जब टूरिज्म की बात करते हैं तो चाहे हम स्टेट टूरिज्म की बात करें चाहे इंडियन टूरिज्म की बात करें, सबसे पहले अगर हर स्टेट अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की तरह से कमर्शियली और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए दोनों तरीके से टूरिज्म को कनेक्ट करके काम करेगा तो मुझे लगता है कि चीजें मल्टीफोल्ड विकसित होंगी। जैसे हम एक यूपी टूरिज्म को एक प्रोडक्ट की तरह से अगर माने तो बॉर्डर टूरिज्म मेरे लिए यूपी स्टेट के बाहर के जितने स्टेट हैं सबसे पहले वहां से शुरू होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे लिए इंडिया के बाहर से जो ओवरसीज ट्रेवलर आ रहे हैं उनसे शुरू होता है। हमने जो इन 2 सालों में रियलाइज किया और ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो वॉल्यूम है और जो कैपेसिटी है, मैं अभी एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैं एक यूपी टूरिज्म के तरफ से बात कर रहा हूं तो मैं यूपी के बारे में बात करूंगा। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म की बात नहीं करेंगे, तो मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह से ट्रीट करते हुए बात करूंगा कि इसमें जितने भी टूरिस्ट आए हमारे एडजॉइनिंग स्टेट से और जितना हम उनके लिए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में अवेयरनेस और इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें और जितनी उनकी स्पेंडिंग्स हो यहाँ पे, वो स्पेंडिंग्स पहले बेनिफिशियल होंगी यूपी टूरिज्म के लिए डायरेक्टली, सोसाइटी के लिए, पैरेलल ग्रोथ के लिए, वर्टिकल ग्रोथ के लिए और मॉनेटरी ग्रोथ के लिए। क्योंकि ये तीनों चीजें जब तक कनेक्ट नहीं है, हम सोसाइटी के लिए टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम बाकी सबके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले कंसंट्रेट होना चाहिए कि बाहर के जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स के हैं या साउथ के लोग हैं, उनका इंटरेस्ट और उनका रिक्वायरमेंट हम समझ सकें और उनको वो चीज दे पाए कि वो अपना मूवमेंट कॉन्टिन्यूअस रखें। क्योंकि वॉल्यूम है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो किसी भी बॉर्डर से, किसी भी कंडीशन से, किसी भी मतलब जो भी कंट्री के लड़ाई झगड़े से डिस्टर्ब नहीं होता है कि टूरिस्ट आना बंद हो गए, वर्ल्ड वॉर हो गई की आशंका है तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट आना बंद हो गए। ये जो हमारा विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, इंटर स्टेट टूरिज्म, मेरे लिए तो बॉर्डर की शुरुआत वहीं से होती है। अगर हम आज की डेट पे बात करें तो यूपी में टोटल एयरपोर्ट से जो ऑपरेटिव हैं जिसको हम हब पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सब बातें आप लोग कर चुके, तो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा था कि मुझे बोलना है वो पूरा ट्रैक चेंज हो चुका है और मुझे लगता है कि सबने श्रावस्ती के बारे में बोल दिया, सबने बाकी चीजों के बारे में बोल दिया, तो उसके बारे में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है। तो इसलिए मैं इस समय जो मुझे समझ में आ रहा है, जो चीज शायद कहीं मिस हो गई है, आज की डेट में हमारे पास 9 एयरपोर्ट है, हब पॉइंट है यूपी के अंदर। हम बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती की बात करने के लिए आज की डेट में बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, अगर आप देखोगे तो हमारे डेवलप्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, आगरा, वाराणसी, सारनाथ, इनको हमको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इनके पास होटल्स भी हैं। हम हर कैटेगरी को इनको हम यहाँ पे दे सकते हैं, इनको हम टूरिज्म प्रोडक्ट एक अच्छे पैकेज्ड फॉर्मेट में दे सकते हैं।
हमको लगता है कि हमको अब ध्यान देने की जरूरत है, बहुत कंसंट्रेट होकर के श्रावस्ती जैसे टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है यूपी में। हमको ध्यान देना चाहिए विंध्याचल रीजन जो यूपी में विंध्या रीजन है और मिर्जापुर है, जिसके पास इतने एसेट्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं टूरिज्म के लिए। हम उसको उस लेवल पे अभी हम ना तो मार्केट कर पा रहे हैं, ना हम टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह से पैकेज बना के लॉन्च कर पा रहे हैं, ना ब्रांड कर पा रहे हैं। हमको ध्यान देना चाहिए रॉबर्ट्सगंज या सोनभद्र वाला जो पूरा बेल्ट है और उसके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली लेकिन इन सबको ध्यान देने, क्योंकि अब हम बात करें जो अयोध्या और ये सब अब ऑलरेडी ब्रांडिंग इंटरनेशनल चेन पे हो चुके हैं, ये अब अपना एक इनका ड्यू टाइम होगा डेवलप होने के लिए, और ये डेवलप हो जाएंगे क्योंकि अवेयरनेस अब क्रिएट हो चुकी है। हमको अपने यूपी के सभी टूरिज्म प्रोडक्ट जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिनके पास काफी पोटेंशियल है, उसमें से ही आज जो आप लोगों ने श्रावस्ती उठाया वाकई वो प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे साउथ का एक ग्रुप आया था, मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट 1 साल पहले हम लोग या तो इंटरनेशनल करते थे या फॉरेन टूरिस्ट जो आते थे वो करते थे। थैंक्स टू कोविड इसने 2.5 साल में हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। हम लोग जब केरला से कभी आज से 4 साल पहले क्वेरी आती थी, सर हम 40 लोग यूपी आना चाहते हैं, तो वो हम अपने टीम में सबसे लीस्ट क्वेरी में डालते थे। इन 2.5 सालों में उसी टूरिज्म ने हमको सपोर्ट किया, चाहे वो महाराष्ट्र से सर आपके अयोध्या हो गया, सर हम लोग आके देखना चाहते हैं। ब्रांडिंग किया है गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने भी किया है, सबने किया है, ओडीओपी भी है। ये सब एक स्पेसिफिक हम पिलग्रिमेज टूरिज्म या हेरिटेज टूरिज्म की बात कर रहे हैं। हम अगर ओवरऑल पैकेज की, क्योंकि आज की डेट में बुद्धिस्ट सर्किट पे ग्रुप ऑफ फैमिलीज को भेजने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा साइड प्लेटर नहीं है जो हम उनको ऑफर कर सके ऑन द। आज की डेट में किसी भी बुद्धिस्ट सर्किट पे अगर हम एक कोई 4 स्टार 5 स्टार अच्छा रिजॉर्ट डाल देते हैं, जिसमें कि एक फादर या मदर बुद्धिस्ट सर्किट में जाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पापा हम रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं, वी वांट टू एंजॉय एंड वी वांट डू सम आउटिंग्स, तो अगर इन सर्किट्स पे कुछ रिजॉर्ट टाइप की चीज हो जिसमें मदर फादर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें और जो टीनेजर्स हैं बच्चे वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, तो हम एक कॉम्पैक्ट पैकेज फॉर्मेट में जाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है। प्रोबेबली भाई यूपी गवर्नमेंट या और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी सोच हमसे बहुत बेहतर होगी। आई एम वेरी यंग इंडस्ट्री, आई एम नॉट लेस देन 25 इयर्स इन इंडस्ट्री। तो लेकिन मुझे लगता है कि कंबाइंड पैकेज, फैमिली मूवमेंट्स, ग्रुप मूवमेंट्स, आपके जितने एसोसिएशन के मूवमेंट्स होते हैं, इंसेंटिव मूवमेंट्स होते हैं, लोग आज की डेट में कहते हैं मुझे 3 दिन की कोई जगह बताओ विवेक कि हम तुम्हारे यूपी में आके बिता सकें। बनारस, आगरा वो जानते हैं, अयोध्या कहते हैं कि हम जाएंगे, हम सिर्फ वहां देख के एक्सकर्जन टूर की तरह से आएंगे, हम लखनऊ में रुकेंगे। हम अयोध्या में नाइट स्टे बढ़ाने के लिए आज की डेट में हमारे पास कोई भी ऐसा रिजॉर्ट या कोई भी ऐसा होटल नहीं है जहां पे हम एक फैमिली ग्रुप को स्टे करा करके अयोध्या के पिलग्रिमेज टूर के साथ एक इंटरेस्टिंग टूर को कनेक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि हमें एक वास्ट तरीके से कमर्शियली वायबल, क्योंकि सोसाइटी को जो बेनिफिट हो रही है, जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो ओवरऑल हम हमारा जो एक मैपिंग हो रही है, जो हम एक डॉट्स के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वो एक सेपरेट इशू है, बट इट मस्ट बी समवेयर रिलेटेड कमर्शियली और मॉनेटरी रिलेट होने का मतलब हमारा ये है कि अगर यूपी में साउथ से या महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, तो वो जब पैसे यहाँ स्पेंड करेंगे तो इनडायरेक्ट यहाँ पे जॉब क्रिएशन और प्लस वहां का रेवेन्यू, कम से कम हम अभी स्वार्थी हो जाते हैं, हम अभी इंडिया की बात नहीं करते, कम से कम महाराष्ट्र का रेवेन्यू हमारे यूपी में तो स्पेंड हो रहा है, कम से कम साउथ का रेवेन्यू तो हमारे पास स्पेंड हो रहा है। हमको लगता है कि पहले हम इस तरह से अगर सोचे तो हमारे पास जितना बड़ा हमारा स्टेट है और जितने हमारे पास हब पॉइंट्स है एयरपोर्ट के, हम इन चीजों को बहुत अच्छे से पैकेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा रोड और उसको हम प्राइमरी लें। हमारे लिए सबसे पहले स्टे जो है हर जगहों पे, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट आ गया, चाहे मुकेश मेश्राम सर ने बताया कि हम पीपीपी प्रोजेक्ट पे भी जाना चाहते हैं, तो इस तरह के रिजॉर्ट्स को डेवलप करके एक ओवरऑल पैकेज फॉर्मेट में लेकर के हम उसको पिलग्रिमेज या हेरिटेज या विलेज टूर के बजाय एक कॉम्पैक्ट पैकेज में बदल सके, जिसमें 18 साल का बच्चा या 15 साल के बच्चे से लेके उनके मदर फादर हम सबको इन्वॉल्व कर सके।
मेरी अपनी सोच है और मुझे लगता है मैं इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ। बाकी आप लोगों के पास सब कुछ है, आप लोग सब कुछ बात कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि और मुझे कुछ नहीं करना है। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी बात की और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। आपने बोला कि भाई 15 से 18 साल के बच्चे अपने माता पिता के संग, मैं इसलिए एक्सटेंड करना चाहूंगा और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इवन माय फादर हु इज 84, माय मदर हु इज नाउ मस्ट बी 78 79, शी आल्सो वांट्स टू गो टू अयोध्या। अब अगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चूंकि अयोध्या होकर के आया हूं, कि साहब मैं एक 84 ईयर के व्यक्ति को कैसे मैं लेकर के जाऊं जहां पे मुझे पता है मेरी गाड़ी जो है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर जो है रोक दी जाएगी, और उसके बाद मुझे अपनी सारी व्यवस्थाओं पर जो है अपना विचार करते हुए, क्योंकि सब कोई हमारी तरह वेल कनेक्टेड नहीं होता, तो हमने साहब वहां उत्तर प्रदेश पुलिस में बात करी और चूंकि हमारी गाड़ी फिर आगे तक आई। और उसके बाद अगर मैं केवल अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में यूपी टूरिज्म का एक बहुत अच्छा मैं उसको एक मिनी रिजॉर्ट मानता हूं, लेकिन उस रिजॉर्ट में उतने कमरे नहीं हैं कि कम से कम 40 या 45 फैमिलीज आकर के रुके। जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में मुकेश सर को बताया कि भाई बड़ा अच्छा हमको एक्सपीरियंस लगा। लेकिन क्या हम जब अयोध्या की गलियों में जाते हैं पांडे जी, और कई घर हमें जो है वहां पर पता लगा कि लोग अब इन घरों को छोड़ छोड़ करके जा चुके हैं और वो लोग कोई लखनऊ में, कोई बनारस में, कोई कई जगह है, क्या हम उन घरों में कोई ऐसा, मे बी ए वेरी वाइल्ड थिंकिंग आई एम हैविंग, उन घरों में रहने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैंने पूछा साहब, पता लगा गली में सारे घर खाली पड़े हैं। तो हमने पूछा साहब ये जो पूरे घर खाली पड़े हैं इसमें कौन लोग रहा करते थे? बोले साहब ये जो जितने घर हैं अब धीरे धीरे सरकार इसको टेक ओवर कर चुकी है या शायद कर रही है और इसमें बनाया जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह का कार्यक्रम करें, जैसे राजस्थान में हम हवेलीज में हम जाकर के रह सकते थे और वहां पर हम अपने आप को फील कर सकते थे कि ये 400-500 साल पुराने जो घर हैं उसमें हम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस क्षेत्र में जो है विचार जरूर करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है, साहब रहेंगे कहां पर, हम नाइट स्टे कहां करेंगे। और किसी ने कहा कि साहब हम अयोध्या जाएंगे ट्रांसिट में और नाइट स्टे साहब करेंगे लखनऊ में। तो ये सबको पता होना चाहिए कि लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में ही कम से कम 3.5 से 4 घंटा लग जाएगा, अगर ड्राइवर कम से कम 80 की स्पीड पे चलाएगा तो at least now, since we are doing a lot of things, we must make a detailed program जहां पे अभी सर ने कहा था कि जो है कहां पर गैप्स हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर सरकार इसके ऊपर काम कर रही होगी, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही होगी। मुकेश जी अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और अगर आप अभी भी कनेक्टेड हैं तो अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि कई लोगों ने मुझे सजेशंस जो है इस ये दिए जो, और जो पांडे जी ने बताया सर इस पे कि कैसे हम जो है स्टे अरेंजमेंट जो है हम इन क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर लिसनिंग टू मी मुकेश जी, यू कैन आंसर टू इट, अदरवाइज वी आर सर्टेनली गोइंग टू कम बैक टू यू विद अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और विद अ डिटेल्ड रिकमेंडेशन ऑन दिस। मैं कुछ थैंक यू पांडे जी फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और मैं कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पढ़ना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आई है, सुबोध जी ने तो खैर गुड इंफॉर्मेशन लिखा है। प्रभाकर जी ने लिखा है, इन टूरिज्म वी ओनली गिव एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग unintegrated facilities as need based but not integrate with city and surrounding facilities. Very good. So there is a need of integration. यही बात पांडे जी ने भी बोली है, of various activities with non tourism activities also to boost tourism. या पांडे जी ने यही बोला है कि कैसे डॉट्स को आप कंप्लीट कनेक्ट करेंगे और आपके पास जो है सारी सुविधाएं वहां पर जो है मिलेंगी, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि हम अब केवल जो है गोरों की तरफ ना देखें कि गोरे आएंगे तभी हमारा जो है टूरिज्म बढ़ेगा। हम अपने डोमेस्टिक जो हमारे देश के लोग हैं, हमारी जो इतनी असंख्य करोड़ों की जनसंख्या जो आज आ रही है, हम उसको भी अतिथि देवो भव माने, जो केरल से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, उसको भी हम उस तरीके से ले। एंड आई एम श्योर श्रावस्ती जो है उस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मैं एक ऑब्जर्वेशन और लेना चाहूंगा। इट इज वेरी वेल सेड that a combined package
thought is required, which cater all aged group in one package. Very good. Again, the idea given by Pandeji, and we have just seconded that. So ladies and gentlemen, a very good observation you have said. एक मेरे पास मैसेज आया है, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा. आप आज बॉर्डर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या आप हमारे पास कंप्लीट डायरी भेज सकते हैं जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाएं? पांडे जी ने यही तो पूछा है. माय फ्रेंड पांडे जी ने यही इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि क्या हम कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने सब लोगों को दे सकते हैं. ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आज इतने लोग हमारे संग जुड़े, इतने हमारे संग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़े, और आज हमने जबकि बात हम बॉर्डर टूरिज्म पे कर रहे थे, लेकिन आज हमने होलिस्टिक बात भी करी. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम. अब मैं श्री राजन सहगल जी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे चेयरमैन श्री जैन साहब could not connect with us today in this very meaningful program, who is the chairman of tourism and hospitality committee and also the chairman of Bel Air. तो उनके बिहाफ पे राजन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वोट ऑफ थैंक्स, आप फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें for all our panelists and also to the delegates. Over to you, Rajan ji. Yeah, thank you once again, Dr. Srivastava. And I think it was a very useful webinar today on Uttar Pradesh. And it's very good to connect with old colleagues from the famous state of Uttar Pradesh. And you know, the Uttar Pradesh, the importance of Uttar Pradesh, Dr. Yogesh ji, is very, very important, because no tourist, whether it's a domestic or international, his tourism is not complete if he is not visiting Uttar Pradesh. So Agra, which is a must, and you know, काफी बात हुई कि हमें आगरा, वाराणसी, सारनाथ में already infrastructure है, हमें दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए. Before I give vote of thanks to each eminent panelist, सर मैं आपको मेरी सुनील गुप्ता जी से बहुत बार बात हो चुकी, मैंने उनको कुछ कोटेशंस वगैरह भी लेके भेजी. आगरा में आज इतना अच्छी होटल्स हैं, इतनी अच्छे लग्जरी एंड बजट होटल्स हैं, बट कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग वहां 2 घंटे से ज्यादा रुकते नहीं, बिकॉज शाम को वहां करने के लिए अभी भी कुछ नहीं है आगरा में. तो लोग यहाँ तो दिल्ली वापस आ जाते हैं या जयपुर निकल जाते हैं. So we have to really work on that. I have given lots of proposal to Sunil Gupta ji to develop that golf course which is right behind the Taj Mahal, because जितने tourists जाते हैं उसमें से I can assure him that 20 to 25% will definitely play a game of golf and अपनी फोटो क्लिक कराएंगे golf खेलते हुए behind Taj Mahal. और उसके अलावा हमें साउंड एंड लाइट शो, कुछ म्यूजियम्स, कुछ स्पेशल खाना यूपी का, ये और यहाँ बोट राइड on back of the river on Ganges के ऊपर जिसमें ताजमहल दिखाया जा सके. You know, these are the attraction जो हम करेंगे तो इससे काफी बढ़ावा मिलेगा. लेकिन जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस, उसके अंदर जो रिलीजियस प्लेसेस है, द रिलीजन टूरिज्म विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे विवेक पांडे जी ने बताया कि पहले वो फॉरेन टूरिस्ट को ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन इंडियंस जो हैं वो आप कोविड के बाद टू बाउंस बैक for their business, they will definitely rush to the God. अपने भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए religion tourism will play a very important role. And Uttar Pradesh is full of religion. And अभी जो आपके पास international airport आ रहा है, Jewar Airport, which will be a landmark. Ayodhya Airport is coming up with a beautiful railway station. The film city is coming in near Greater Noida. So these are all the attractions. But आपकी बात जो सुनील गुप्ता जी ने भी कही कि छोटी छोटी बातें हैं, टू अपग्रेड द मॉन्यूमेंट्स, टू क्रिएट द फैसिलिटीज, लाइट्स, प्रॉपर टॉयलेट्स, एक वहां पे सेविनियर शॉप होनी चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए. योगेश जी ने भी कहा कि अयोध्या में जाने के लिए चाहे वो यंग ट्रैवलर हो या ओल्ड ट्रैवलर हो, उसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए सारी. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और अगर जो सजेशंस हमें हर वेबिनार में मिलती हैं, स्पेशली इस वेबिनार में भी मिली हैं फ्रॉम ऑल द पैनलिस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मुकेश कुमार मेश्राम जी, द IAS on Principal Secretary Tourism and Culture for Government of Uttar Pradesh, Mr. Rama Kamaraju, Senior Consultant to Niti Aayog, who is a big support for all our webinars. Mr. सुनील गुप्ता जी, मैं आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको, योगेश जी इनको बधाई भी देंगे, क्योंकि अभी इनको पर्यटन के
क्षेत्र में इनके योगदान की वजह से बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया गया है सुनील गुप्ता जी को। और विवेक पांडे जी जो हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं इस ट्रैवल ट्रेड से, हम उनके साथ काफी जुड़े हुए हैं और हम समय पे एक दूसरे के साथ काफी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और इस तरह आप PhD प्लेटफॉर्म पे भी जुड़िए विवेक पांडे जी, और आपके सजेशंस आज हमने नोट किए एंड वी विल डेफिनेटली टेक दिस फर्दर। एंड हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर प्रदीप मुल्तानी जी जो आज जुड़ नहीं पाए, मिस्टर पवन सागर जैन चेयरमैन टूरिज्म कमेटी, एंड जो हमारे PhD यूपी चैप्टर के रेजिडेंट डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव जी ने बड़ी अच्छी बातें की। और आप हमें जोड़िएगा इन प्रोग्राम्स के साथ, हम आके यूपी में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपके साथ करना चाहेंगे जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर फ्रॉम द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, Sulagna Ghosh, who is the the force behind this tourism webinars. Thank you very much, Sanchit and Sanjeev, for giving your support always to Sulagna and make these webinars a great success. And our next webinar is on the 25th of February on the state of Sikkim at 3 p.m. So please join us. Please stay safe, and I think tourism is bouncing back very soon. So we all hope to meet each other physically. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rajan ji. Thank you very much for your wonderful words, and I'm so happy that always your presentation and your communication is always up to the mark and very very unique. और पांडे जी ने भी जैसा बोला कि भाई आपको कई दिनों के बाद वर्चुअल देखने का मौका मिला, पांडे जी और गुप्ता जी और मैं सारे अपने जितने पैनलिस्ट हैं, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आई एम श्योर अतुल जी जरूर एक कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे लखनऊ में। इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है आपकी PhD चैम्बर की, PhD हाउस, वहां पर आप रखें, मीनिंगफुल स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और हम कार्यक्रम करेंगे। मैं एक जो है ऑब्जर्वेशन राजन सहगल जी आपकी परमिशन से यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो कि हमारे श्री सुधीर सोपती जी ने मेरे को लिख करके दी है, दिल्ली टूरिज्म में रहे हैं और टूरिज्म के क्षेत्र में इनसाइक्लोपीडिया हैं, काफी मुझे सिखाया है उन्होंने कि टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिफरेंट टूरिज्म के जो वेज हैं उसमें दिल्ली टूरिज्म में उन्होंने काम किया है। और अपना यहाँ पर जो INA में दिल्ली टूरिज्म का एक बहुत बड़ा दिल्ली हाट है उसको भी, और जनकपुरी में भी जो बेहतरीन मैंगो फेस्टिवल है उसको भी बनाने में, उस पूरे प्रॉपर्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो कह रहे हैं कि यूपी इज मिनी इंडिया एंड अ कंप्लीट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ टूरिज्म। ये बहुत ही बेहतरीन बात की है सुधीर सोपती जी आपने कि यूपी इज मिनी इंडिया। ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री एंड इज अ कंप्लीट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ टूरिज्म। मैं फिर से इस बात को जो है दोहराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश इज उत्तम प्रदेश, और जब हम उत्तम की बात करते हैं तो जरूर आप उत्तर प्रदेश में आए। बॉर्डर टूरिज्म को तो हम बढ़ावा देते ही रहेंगे, बट एट द सेम टाइम जैसा कि हमारे सब दर्शक ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम टूरिज्म का बढ़ावा देने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार जब बढ़ेगा तभी हम जो है इसको उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वंडरफुल वर्ड्स। मैंने अपने मेल ID, अपनी कुलीग सुलग्ना घोष का मेल ID और जो मेरे रेजिडेंट डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के हैं उनका भी जो है हमने मेल ID आपको चैट बॉक्स में दिया है। कृपया इसको आप नोट करें, जब भी आप हमसे कनेक्ट करना चाहें प्लीज आप कनेक्ट करें, हमको सजेशन दें, सपोर्ट करें। हम एक इंडस्ट्री चैम्बर है, अपने मेंबर्स के द्वारा हम आपके प्रदेश में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लाने में भी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राजन जी कुछ कहना चाहते हैं? राजन जी आप प्लीज। मैं सिंस सुनील गुप्ता जी लाइन पे हैं जो कि एक वन ऑफ द पिलर ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री हैं, अगर आप उस गोल्फ कोर्स को बनवा दें तो हम अपना नेक्स्ट गोल्फ टूरिज्म कॉन्क्लेव योगेश जी आगरा में करेंगे, जस्ट ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ताजमहल। फैंटास्टिक, ये लीजिए आप नेक्स्ट प्रोग्राम इन्होंने आज आगरा के लिए चिन्हित कर दिया। मैं राजन जी आपकी परमिशन से वो भी बताना चाहूंगा कि आप देश के दूसरे प्रदेशों में क्या काम कर रहे हैं। जैसलमेर में आप एक काम करने जा रहे हैं, 27 तारीख को हम सब जैसलमेर के लिए आपको निमंत्रण देंगे। सुलग्ना जी आप सबको चिट्ठी लिखेगी कि 27 तारीख को हम जैसलमेर में एक बॉर्डर टूरिज्म हाइब्रिड हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज मेरी 2-3 एम्बेसडर से बात हुई, दे आर आल्सो विलिंग टू कम। जैसा कि अभी
मुकेश जी ने बताया लोग घरों से निकलना चाहते हैं। आप अप्रैल में जो फिल्म टूरिज्म का काम राजन सहगल जी मुंबई में कर रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल। चाहेंगे कि प्रदेश हमारा स्टेट पार्टनर बने और बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। टूरिज्म बोर्ड आकर के अपने आप वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करे। सुनील जी ने हाथ उठाया। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं राजन साहब का बहुत आभारी हूँ। उनका हमेशा से मुझे स्नेह रहा है, मेरे बड़े भाई हैं। आपकी गाइडेंस के लिए और गोल्फ कोर्ट में आपका स्वागत है। वी आर इक्विप्ड, वी आर रेडी टू होल्ड एनी टूर्नामेंट, और मैं उसका मेंबर भी हूँ। और अब हमने बहुत सारी वहाँ सुविधाएं विकसित कर दी हैं, और इट्स ए वंडरफुल कोर्ट। और आप कभी आगरा आए तो मैं आपको पर्सनली वहां लेके चलूंगा और आपको इंस्पेक्शन करा के सेटिस्फाई करूंगा कि हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। जी से भी मेरे बहुत ही 25-30 साल के अच्छे मधुर संबंध हैं, तो उनको भी नमस्कार और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और मैं सबको अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, अतुल जी आप चूंकि लखनऊ बेस्ड हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उत्तर प्रदेश के आप हैं। आप टूरिज्म सेक्रेटेरिएट जो दिल्ली में बैठा है, लेड बाय संचित एंड सुलग्ना, आप इनसे कनेक्टेड रहें और जितने भी हमारे इनिशिएटिव हैं उत्तर प्रदेश में, सब जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताएं, और उत्तर प्रदेश में कैसे हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को लेकर के आए और सबको जोड़ करके चलें। जैसा कि हमने अपने उद्बोधन में कहा कि भाई कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कनेक्टिविटी, इन्हीं 3 सी पर हम काम करते चलेंगे। So ladies and gentlemen, thank you very much for your wonderful words, since you have given your time also, and at the same time we will ensure that such kind of programs are going to be in continuation in future too. So with this note, thank you all, wish you all the very best, have a great day, whatever balance it is left out. Namaskar and Jai Hind. Thank you, sir.